Tonight is another night of solidarity. It is symbolic because people of this country are unwilling to give up their fight. They've come out because they know it is a battle for justice which they have to lead, and they are leading it. Tonight we come to you from the newsrooms across India because for every journalist, a newsroom is his sanctum sanctorum. The newsrooms of Republic TV, the young team today is roaring. We are working with our heads held high. The newsroom of Republic Bharat, there are our colleagues there who are standing there, and we are waiting. We are waiting to see, because people of India have put the tyrants to test. There are newsrooms from where editors, there are newsrooms from where journalists have today come out to show their solidarity. They do not want this emergency era tactic to go on. I'm tossing it across to my colleague Sanika, who's joining us live from the newsrooms of Republic TV. Sanika, over to you. Yes, Sagarika, and like you said, the newsroom is a sanctum sanctorum for us journalists, and this is our sanctum sanctorum. And tonight, in fact, I'm being joined by this young team of journalists from the Republic newsroom. As you can see, this is a newsroom filled with young journalists. I'm being joined by our digital desk, the output desk, input desk, and all producers here at Republic TV who are leading this fight, who stand in solidarity with Arnab Goswami, who was illegally arrested yesterday from his house. He was assaulted, taken to Palghar, taken to Raigad, to Alibag police station, and currently who is in judicial custody. We are fighting this battle in courts as well, and minute by minute, Sagarika, we're witnessing this huge support from the people of India. We're getting these protests from across the country, and tonight, in solidarity with us, we're joined with journalists from across India. We have journalists joining us from Assam, from Odisha. So first, I would like to go across to this team in Northeast, in Guwahati. In fact, the team of Northeast Live is joining us live from their newsrooms in Guwahati. I would like to toss it to them to get their opinion on this attack on the freedom of press in Maharashtra. What they have to say, how they stand in solidarity with Arnab Goswami and the Republic Media Network. Yes, first of all, I would like to congratulate Team Republic TV, Team Republic Bharat for the job you're doing. It's commendable. Keep fighting, guys. What has happened in the last 24 hours, the last 36 hours is condemnable. Well, it is nothing short of a witch hunt. It is nothing short of a witch hunt. A case that was closed back in 2018, open now, and we all know why. Everyone who has been following this sequence of events over the last few months knows that Republic TV has been systematically targeted by the system, by the Maharashtra government. And it's the duty of every journalist in this country to right now stand with Arnab. Whether or not you agree with him, whether or not you endorse the way he goes about his job, that's a different story. But it's a question of democracy being murdered in broad daylight. This cannot happen. As rightly mentioned by your team in the studios, this is not the emergency period anymore. We cannot tolerate these sort of things. There's a way to do things. You cannot manhandle people. You cannot manhandle journalists. Everybody has the democratic right to express themselves. The law should take its course. Go ahead with it, but why manhandle? Why assault someone? Why assault someone? Why have to create that scene? Why drag people out? This is not acceptable, and that's why no wonder there are protests across the country, across the nation, everyone standing up in solidarity with Arnab Goswami. And why not? It is this hour. We have to stand together. We cannot accept this. Today, it's happening with Republic TV. Tomorrow, it can happen with anyone in any state of this country. This can become a precedent. We cannot allow this to happen. I'm sure my colleagues here also have something to add. Yes, that's a very valid point that you've made, that nobody can remain silent in this battle because it could happen to anybody. So we're also being joined. मराठा योद्धा शिवाजी के लिए हम महाराष्ट्र पे गर्व करते हैं. आज उनकी आत्मा जो है कलप रही होगी, रो रही होगी. जिस तरह का कायराना हरकत जिस तरह से की गई है, केस के बारे में तो
मेरे कलीग ने बता दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लाचित की भूमि से एक शेर गरज रहा है। महाराष्ट्र मराठा भूमि में कोई गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से उनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने हरकत की है उसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक काम है उद्धव ठाकरे सरकार की, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्नब दा आप जहाँ कहीं भी है और टीम रिपब्लिक हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। लाचित बोरफुकन की धरती से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी, जैसे भी हमारी जो भूमिका होगी हम उसको ज़रूर निभाएंगे। जी आप 2 साल का एक केस का बहाना लेके अर्नब जी को जिस तरह अरेस्ट किया है, उनके ऊपर और उनकी फैमिली का ऊपर जिस तरह एट्रोसिटी कर रहा है, ये तो गलत है। मैं इस घटना को निंदा करता हूँ। ये घटना बहुत शर्मनाक है इंडिया में मीडिया के लिए और वाक स्वाधीनता के लिए। जी ये घटना जल्दी बंद होना चाहिए, नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मीडिया का जो स्वतंत्रता है, वो भंग हो जाएगा और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा दिन चल रहा है महाराष्ट्र में। ये जो घटना अभी तक हुआ है इंडियन मीडिया के लिए बहुत भयानक स्थिति है। ये स्थिति बंद होना चाहिए। इस सिचुएशन सुधारने के लिए और अर्नब जी का न्याय दिलाने के लिए हम खड़ा है, और जब तक अर्नब जी को न्याय नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई चलते रहेगी। जी थैंक यू। Ji. We would like to thank News Live for their constant support to Team Republic. In fact, thank you very much for joining us live on this broadcast. And now I'm moving across to Odisha. We're joined by the team at OTV. And in fact, Sagrika, a few weeks back, we also saw how there was a witch hunt against OTV journalists as well. How a few days back the CFO was picked up. Before that, a senior journalist of the network was picked up because he had reported against the Chief Minister. I would like to go across to the team in OTV who's joining us live from Bhubaneswar tonight, in fact, to get their views, their detail, their support to the Republic TV Republic Media Network. Over to you, OTV. देखिए, आपने सही कहा कि ये घटना उड़ीसा की हो या महाराष्ट्र की, आपने ये जिक्र भी किया कि उड़ीसा में ये घटना घटी है। ये जहाँ पर भी हो, जो पत्रकारिता के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये हम स्ट्रांगली इसे कंडेम करते हैं। मेरे कॉलीग जो है वो भी बताएंगे, हम सब अर्नब जी के साथ है, हम सब पत्रकारों के साथ है। जो पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है, हम इसके खिलाफ है। मेरे कॉलीग है वो भी बताना चाहेंगे। माय कॉलीग राजश्री एंड राधा माधव मिश्रा। राजश्री टेल। देखिए, जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है अर्नब की, इसे तो अंग्रेज राज कहते हैं और ये तानाशाही चल रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी सच्चे पत्रकार होते हैं वो सवाल पूछते हैं सिस्टम से, जवाब मांगते हैं सरकार से। और चाहे वो पालघर केस हो या फिर सुशांत मर्डर मिस्ट्री या फिर कंगना के ऑफिस तोड़े जाने के बाद, ये पूरे केस को जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया ने एक मुहिम चलाया, कंटिन्यूसली न्यूज़ दिखाया और अर्नब ने जिस तरह से लीड किया, उसका नतीजा क्या ये है, अगर 2 साल पहले की कोई केस आप रीओपन करते हैं, उसके बारे में आप कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते थे, नोटिस पे बुला सकते थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट के घर में घुस के आपने जिस तरह से उन्हें उठा के लाए, ये इसे हम क्या कहेंगे। और इस तरह के बर्ताव को मैं कड़ी भाषा से निंदा करती हूँ आज ए जर्नलिस्ट। और ऑफ कोर्स यस, वी आर विद अर्नब। देखिए, हम बिल्कुल अर्नब जी के साथ हैं और कल जो घटना घटी ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। जैसे कि मेरा कॉलीग राजश्री बता रही थी कि पहले तो ये बात कि आप एक बंद हो चुकी केस को फिर से रीओपन करते हैं, और दूसरा है कि जिस तरीके से आप घसीट के अर्नब जी को घर से लेके जाते हैं, ये कोई तरीका है या पुलिस का गुंडागर्दी है? ये हमारा सवाल है। और हम ये अपील करते हैं कि पूरे देश के जजेस को, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को, कि देखिए कि देश में क्या हो रहा है। अगर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी
ऐसे सफ़र करेगा तो हम लोग काम क्या करेंगे। जैसे कि कल हियरिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये तो हमारा अपील रहेगा जजेस को, वो पूरे देश में, चाहे उड़ीसा में हो, अदर स्टेट्स में हो। देखिए जर्नलिस्ट के साथ हो क्या रहा है, पुराने केस को फिर से रिओपन करना और घंटों भर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर क्वेश्चनिंग करना, ये कैसा मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। और ये तो बिल्कुल मतलब जैसे सप्रेशन हो, विच हंटिंग अगेंस्ट द मीडिया चल रहा है। और हमारा ये अपील रहेगा पूरे देश के ऑनरेबल जजेस से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, देखिए क्या हो रहा है। और लास्ट होप हमारा जुडिशरी में ही है, तो हम ये अपील करेंगे कि कल, क्योंकि अर्नब जी का बेल का पिटीशन आ रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जजेस ये देख रहे होंगे और हम अभी लास्ट होप अपना उम्मीद जगाए हुए हैं कि इसमें एटलीस्ट कोर्ट इंटरफेयर करेगा। जी 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 जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी लोगों everybody is expecting looking towards the high court, the judgment and the hearing that is going to take place tomorrow. I would also like to introduce our news partners in the Northeast. They're in Prague TV. They're also joining us from their newsroom this evening tonight to give us their perspective on this entire news. Coming to you, how do you see this action, the excesses in Maharashtra, the coercive action that has been taken against Republic Media Network, Arnab Goswami? It is very clear for us that Arnab was arrested in a ulterior motive, and this तरह से how he was dragged by police and mishandled by the police, जिस तरह से उसको खसीद के लेके गया, वो it is totally not acceptable, एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक जर्नलिस्ट को। और जिस तरह से रिपोर्ट आया है, जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने या रिपब्लिक टीवी ने दिखाया है कि उसको अरेस्ट करने के लिए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजा गया है, साथ में ये AK-47 लेके पुलिस वाले जाके वहां पे जबरदस्ती घर में घुस गया। तो ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। एक जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए आप इतना बड़ा फोर्स क्यों भेज रहे हो, या फिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों भेज रहे हो? आप किस बात को दिखाना चाहते हो या किस डर को आप घुसाना चाहते हो जर्नलिज्म के अंदर? ये बात हम लोग नहीं समझ सकते और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अर्नब जिस तरह के जर्नलिज्म है, इस तरह बात निकले हैं कि कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकते, अलग बात है। लेकिन एक जर्नलिस्ट को, एक जर्नलिज्म को, टोटल सिस्टम को दबाने के लिए सरकार का जो जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के बल प्रयोग कर रहे हैं, दिस इज नॉट टोटली एक्सेप्टेबल। हम लोग ये नहीं मानते हैं। और ये एक दिस इज ए बैड ट्रेंड। ये ट्रेंड आना नहीं चाहिए इंडिया में जिस तरह से हम डिमांड करते हैं, जिस तरह से जर्नलिस्ट डिमांड करते हैं, जर्नलिस्ट जिस तरह से काम करते हैं, उसी तरह से काम करना देना चाहिए। और ये जो हो रहा है, मोर ओवर, और एक बात हम लोग बोलना चाहेंगे इस मामले में कि अर्नब असम का ही सॉइल है, असम का सॉइल है। ही इज द वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोज नॉर्थ ईस्ट फॉर अर्नब ऑल्सो। तो उसने बहुत सारे इश्यूज को, so many issues from northeast, he has raised these issues and successfully these issues was raised. And देखा जाए कि अभी उसके अरेस्ट के बाद हम लोग जैसे वॉइसलेस हो गए, इस तरह से भी बात चल रही है लोगों के बीच में, इस तरह से बात आ रही है असम से भी। तो हम लोग मीडिया fraternity from Assam, we condemn the arrest of Arnab Goswami and we demand immediate release of Arnab. Ji, thank you very much, the team from Prague News, for your constant support to Republic Media Network. I would now like to go across to our newsrooms in Delhi. Our team from Republic Bharat is joining us live right now. Vivek is leading that team. Vivek, मैं आपके पास आ रही हूँ अभी, आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली न्यूज़ रूम में अभी सेंटिमेंट क्या है? कि हमें पता है कि हमारा जोश हमेशा हाई ही है. We are standing in solidarity with our editor-in-chief Arnab Goswami, who was illegally arrested yesterday. So I would like to go across to the Delhi newsroom now. Over to you, Vivek. बिल्कुल सागरिका, रिपब्लिक भारत के न्यूज़ रूम में इस वक्त मैं हूं और विवेक भी मेरे साथ है. मेरे साथ पूरी टीम है रिपब्लिक भारत की और एक एक पत्रकार कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त अर्नब गोस्वामी के साथ है. हम सब अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अर्नब की रिहाई हो और यहाँ पर हर एक पत्रकार, एक एक पत्रकार, हमारी आउटपुट टीम, हमारी इनपुट टीम, डिजिटल टीम, इसके अलावा हमारी वीडियो एडिटिंग टीम, विवेक, हर कोई साथ है और हम चाहते हैं वी आर विद अर्नब, यही आवाज़ निकल रही है. हम सब चाहते हैं कि
जल्द से जल्द रिहाई। और जिस तरह के सेंटिमेंट्स हमने पूरे देश में देखे सागरिका, वो बहुत अहम थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। निधि, और हमने देखा कि एक स्टेट मशीनरी किस तरह से एक जर्नलिस्ट के खिलाफ काम करती है। हमने देखा कि हमने पालघर का सवाल उठाया तो भी उन्हें तकलीफ हो रही थी, हमने सुशांत का सवाल उठाया तो भी उन्हें तकलीफ हो रही थी, हमने दिशा सल्यान का सवाल उठाया तो भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। और इसका एंड कैसे हुआ, कैसे एक मैलिफाइड एक्शन के तहत अर्नब गोस्वामी को उठाया गया। इसी न्यूज रूम से निधि हमने तस्वीरें पहुंचाई, पूरा देश, पूरा भारत, यहाँ तक कि न्यूज रूम में अभी आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ जर्नलिस्ट मित्र हैं सब लोग खड़े हैं अर्नब के साथ, पूरा भारत अर्नब के साथ है। और यही अर्नब की ताकत है, इसी ताकत के साथ वो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और सत्य के साथ लड़ रहे हैं। और इसी ताकत के साथ हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ हो, अन्याय के खिलाफ हो, इनजस्टिस के खिलाफ हो। जिस महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने जो हमारे खिलाफ एक्शन किया, इन सब के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये एक सच की लड़ाई है सागरिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच की लड़ाई में हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद एक एक जर्नलिस्ट, हम सब साथ हैं। सागरिका जी निधि जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब एक साथ हैं। अर्नब गोस्वामी हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे लीडर है। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी आर फाइटिंग बैक एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइट बैक। So I'm handing across to you, Sagarika. These were the voices from the newsroom across India, not just from Mumbai, Delhi, but also from the Northeast, from Odisha. So this is a collective voice that we will not be cowed down and we will continue to fight. Absolutely.